Today I am going to teach you lesson number 3, Dark River and Golden Eyed. Dark River and Golden Eyed has been written by Ray Douglas Bradbury, who is also known as Ray Bradbury. First of all, I will discuss about the author. He was born in August 22, 1920 and he died in 5 June 2012. He is one of the most celebrated 20th and 21st century American author and screenwriter. He worked in a variety of genres: fantasy, science fiction, horror fiction, magic and mystery fiction. Many of his work were adapted into television and film as well as comic book. Dear students, now I will tell you brief summary of this chapter. It is a science fiction and a star on the world authorities to take positive measure to save this world. Story start from here. Due to the threat of atomic war on the earth, about 1,000 people moved from America to Mars. Among Harry Beetring, Cora, David, Dan and Laura. Harry Beetring, Cora, David, Dan and Laura, they are highly active character in the story. Harry Beetring and Cora, they are husband wife. David, Dan, Laura, they are children of Harry and Cora. They start a civilized life. When they moved from America to Mars, they start a civilized life, but gradually they degenerate and adjust there. After some time, they receive the news of destruction on Earth. They receive the news from radio, atom bomb hit New York. All the space rockets have blown up and no more rockets to Mars ever. They were very helpless, they were very shocked, they were crying, but they could do nothing. Harry tries to build a rocket, but nobody helps him. Because of the atmosphere of Mars, the climate of the Mars, the color of their bodies turn into dark and the eyes into golden, and they completely forget the world. After 5 years, Earth people come to rescue, but they don't even recognize them. They forget everything and they do not want to go on Earth. Dear students, after short description of author and summary and characters of this chapter, now we will study it from RNT. Today is your lecture number 3. In this lecture we will discuss about important synonyms, comprehensive based MCQs, short answers, translation and pair of words 21 to 35. Synonym. Each question has 4 possible answers. Tick mark the correct answer. आपके पास 4 answers, 4 MCQ आंसर होंगे. आप उनमें से एक suitable similar meaning आपने choose करना है. The captain established headquarters in the abandoned bar. कैप्टन ने वीरान शराब खाने में अपना headquarter कायम किया. Underline word is abandoned. Abandoned का meaning क्या होगा? Attractive. A option है attractive, पुरकशिश. B spacious, वसी. C colorful, rangdar. D deserted, veran. So similar meaning is abandoned is deserted. MCQ number 2, he was drenched in the hotness of his fear. वो अपने डर की शिद्दत में भीग गया. He was drenched, डूब जाना, भीग जाना. A option is soaked, भीग जाना, डूब जाना. B pushed, धकेलना, धक्का देना. Jumped, उछलना. Found, पाना. तो ड्रेंच का जो सिमिलर मीनिंग होगा बेटा यहाँ पे सॉक्ड, भीग जाना, तर हो जाना. MCQ नंबर 3, लोरा स्टम्बल्ड, लोरा लड़खड़ाने लगी. थ्रू द सेटलमेंट, लोरा लड़खड़ाती हुई बस्ती में आई. क्राइंग, चिल्लाती हुई. अंडरलाइन वर्ड इज इन दिस लाइन स्टम्बल्ड. आइडल्ड होता है डू नथिंग, स्पेंड योर टाइम एंड डू नथिंग, फारिग वक्त ज़ाया करना. बी ऑप्शन इज स्टैगर्ड, इन बैलेंस ना होना, गिरना, मूव और फॉल केयरलेसली. सी लीव्ड, उछलना. एंड डी प्रॉल्ड, प्रॉल्ड मीनिंग चहलकदमी करना, चोरी छुपे किसी जगह पर चहलकदमी करना. सो अंडरलाइन वर्ड इज स्टम्बल्ड एंड द करेक्ट आंसर इज स्टैगर्ड. फॉर MCQs, द विंड ब्लू, हवा चलती थी एज इफ गोया के टू फ्लेक अवे देयर आइडेंटिटीज. हवा ऐसे चलती थी कि उनकी शनाख्त को ख़त्म कर देगी. फ्लेक अवे. अंडरलाइन वर्ड इज फ्लेक अवे. ए ऑप्शन फ्रॉस्ट, धुंध. बी रिपेयर, मुरम्मत करना, सही होना, रिकवर होना. सी एनहांस्ड, एनहांस बढ़ाना. डी डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय तबाह करना. सो सिमिलर मीनिंग ऑफ फ्लेक अवे इज डिस्ट्रॉय. MCQ नंबर 5, यू हैवंट बीन प्रॉलिंग अप इन दोज रूइंस. क्या तुम उन खंडरात में चहलकदमी तो नहीं करते रहे हो? अंडरलाइन वर्ड इज प्रॉलिंग अप. ए ऑप्शन बाथिंग, नहाना. बी क्रिपिंग, रेंगना. सी प्लेइंग, खेलना. एंड डी रोमिंग, चहलकदमी करना, घूमना फिरना. स्टीथीली, मूव अबाउट, स्टीथीली. प्रॉलिंग अप का जो सिमिलर मीनिंग है बेटा यहाँ पर रोमिंग.
These are synonym MCQs. बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपको 10 मार्क्स के सिनोनिम आते हैं बोर्ड में, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट सिनोनिम हैं जो पहले इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में आ चुके हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फैसलाबाद बोर्ड में, लाहौर बोर्ड में, और लाहौर बोर्ड में, मुल्तान बोर्ड में पहले आ चुके हुए हैं. वर्ड फॉर सिनोनिम फ्रॉम पास्ट पेपर्स. सेकेंड सेगमेंट, वर्ड फॉर सिनोनिम फ्रॉम पास्ट पेपर्स. यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, इससे आपसे खुद से सॉल्व करना है, बट आई विल हेल्प यू इन सॉल्विंग दिस. बल्गिंग. बल्गिंग होता है जोरदार आवाज. यू कैन राइट बल्जिंग. बल्जिंग, व्हाट इज बल्जिंग? शार्प साउंड, या फिर यू कैन से बस्टिंग साउंड. हॉलेड, चीखो पुकार करना, शाउट करना, या फिर येल्ड. बल्जिंग, शार्प साउंड, बस्टिंग साउंड, हॉलेड, चीखो पुकार करना, शाउट, येल्ड. डिसमे, मायूस, डिसअपॉइंटमेंट. प्लॉग, टाउन, ये एपिडेमिक, वबा, ये डिजीज. यू कैन राइट एपिडेमिक, एपिडेमिक एंड डिजीज. क्वेश्चन नंबर 3, कम्प्रीहेंसिव बेस्ड एमसीक्यूज. बेटा बोर्ड में ये आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5 एमसीक्यूज आते हैं आपको जिसे अपने सॉल्व करना होता है. ईच क्वेश्चन हैज 4 पॉसिबल आंसर्स. टिक मार्क द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड दे फील ऑन मार्स. उन्होंने मार्स पर क्या महसूस किया आफ्टर द अटैक ऑन अर्थ. जब उन्हें पता चला कि ज़मीन पर हमला हो चुका है, उसके बाद उन्होंने मरीख पर क्या महसूस किया. ए, ड्रेंच्ड, भीगा हुआ. बी, स्ट्रैंडेड, कि हम फंस चुके हैं. सेक्लूडेड, तन्हा. एंड डी, सरेंडर्ड, या फिर वो हार मान जाते हैं. लॉस होप. सो बी आंसर इज करेक्ट. स्ट्रैंडेड, दे फेल्ट स्ट्रैंडेड, उन्होंने महसूस किया था कि वो फंस चुके हैं. सेकेंड एमसीक्यूज, हाउ मेनी डॉलर्स, कितने डॉलर्स डिड ही डिमांड, उन्होंने मुतालबा किया टू सेल द मेटल. सैम ने कितने डॉलर्स डिमांड किए थे. 200, 300, 400, 500, एंड द करेक्ट आंसर इज 500. क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 3, इन विच सीजन डिड मिस्टर बीट्रिंग स्टैंड वेरी गोल्डन आइड. किस मौसम में मिस्टर बीट्रिंग बहुत ज़्यादा सुनहरी हो गए थे और स्याह हो गए थे. विंटर, स्प्रिंग, winter, summer, autumn and spring. The correct answer is autumn. MCQ number 4, at any moment the Mauritian air might. किसी भी लम्हे मरी की हवा bring relief, उन्हें पुरसुकून करेगी. B, draw his soul from him, उनके अंदर से उनकी रूह को निकाल देगी. C, delight him, उन्हें खुश करेगी. D, become pleasant, उनके लिए खुशगवार बन जाएगी. So correct answer is draw his soul from him, उनके जिस्मों से उनकी रूह को निकाल देगी. 5 MCQ, which city was hit with atom bomb. किस शहर पर एटम बॉम्ब से हमला किया गया था. A, लंदन. B, न्यूयॉर्क. C, टेक्सास. and D, बम्बई. So correct answer is New York. New York was hit with atom bomb. Now students, come toward the lesson question number 4. Some important lines for MCQs. 1. What did they do after building a cottage? झोंपड़ी बनाने के बाद, फर्स्ट पेज पे बेटा ये है, what did they do after building a cottage. झोंपड़ी बनाने के बाद उन्होंने क्या किया. So answer is ate good breakfast. उन्होंने अच्छा नाश्ता किया. Second, what was the condition of Bettering family on hearing the news of war on the earth. ज़मीन पर जब जंग की खबर उन्होंने सुनी तो Bettering family की क्या कंडीशन थी. You can write helpless and stranded. They felt they are stranded on the Mars. Stranded या फिर helpless. उन्होंने महसूस किया कि वो मार्स पर, मरीख पर फंस चुके हैं और वो बेयारो मददगार, हेल्पलेस महसूस किया कि वो कुछ नहीं कर सके. शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ Bettering फैमिली ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द वॉर ऑन द अर्थ. आप पहले एक्सरसाइज में कर चुके हैं, सिलेबस आप पहले कंप्लीट कर चुके हुए हैं. ठीक है, ये आपकी रिवीजन टेस्ट सेशन चल रहा है. Bettering फैमिली ने जब जंग की खबर सुनी तो उनकी क्या कंडीशन थी. क्वेश्चन अगर टेंस पास्ट में है तो आप उसको आंसर भी उसको पास्ट में लिखेंगे. दे फेल्ट हेल्पलेस, उन्होंने बेयारो मददगार महसूस किया ऑन मार्स, मरीख पर, बिकॉज क्योंकि ऑल द स्पेस रॉकेट्स ऑन द मार्स हैड ब्लोन अप, वो सब के सब तबाह हो चुके थे, उड़ गए थे. लोरा वेप्ट, लोरा रोने लगी. द मदर हेल्ड ऑन टू हर हस्बैंड, माँ अपनी बेटी और अपने शौहर से लिपट गई. हैरी वॉज सॉक्ड इन दी हॉटनेस ऑफ हिज फियर, हैरी खौफ की शिद्दत में भीग गया, शराबूर हो गया. नाउ यू कैन सी felt second form, past tense,
had blown up, past perfect tense, ठीक है. Laura wept, weep की second form. Held on to, Harry was socked, ठीक है. So आप क्वेश्चन प्रिपेयर करते हुए और एग्जाम में राइट करते हुए टेंसेस का ध्यान रखेंगे और स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे, ग्रामर और पंक्चुएशन का भी आप ध्यान रखेंगे ताकि आपकी ये मिस्टेक्स ना हो और आपकी मार्क्स डिडक्ट ना हो. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड हैरी वांट टू गो बैक टू द अर्थ? हैरी ज़मीन पर वापस क्यों जाना चाहता था? हैरी वांटेड, सेकंड फॉर्म वांट की सेकंड फॉर्म ऑफ वांट, हैरी वांटेड टू गो बैक टू द अर्थ. हैरी ज़मीन पर वापस जाना चाहता था बिकॉज क्योंकि ही थॉट दैट द मरीशियन क्लाइमेट, मरीखी आबो हवा, वुड टर्मिनेट हिज माइंड, उसके जहनों को तब्दील कर देगी, ख़त्म कर देगी, एंड बर्न अवे हिज पास्ट, और उनके माजी को जला देगी. ही ऑल्सो थॉट दैट इट वुड चेंज देम अटरली. उसका ख्याल था कि ये मरीखी हवा, ये मरीशियन क्लाइमेट उनको मुकम्मल तौर पे तब्दील कर देगा. ना यू कैन सी फॉर्म ऑफ वर्ब्स वांटेड, थॉट, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी टर्मिनेट, क्योंकि वुड ऑलरेडी विल के सेकंड फॉर्म वुड के तौर पे यूज़ हो रहा है. वुड टर्मिनेट हिज माइंड एंड ही ऑल्सो थॉट इट वुड चेंज, वुड के साथ फिर फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वुड चेंज देम अटरली, उसे मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देगी. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द एडवाइस हैरी गेव टू द पीपल? हैरी ने लोगों को क्या नसीहत की थी? हैरी एडवाइज्ड, व्हाट वाज पास्ट में है तो उसका आंसर भी किस में होगा? पास्ट में होगा. हैरी एडवाइज्ड, एडवाइस नाउन के तौर पे जब एडवाइस यूज होता है तो सी आता है, और जब एज अ वर्ब यूज होता है तो एस. एडवाइज्ड द पीपल, हैरी एडवाइज्ड द पीपल टू बिल्ड अ रॉकेट. हैरी ने उन्हें नसीहत की कि एक रॉकेट तामीर करें एंड गो बैक टू द अर्थ, और ज़मीन पर वापस जाएं. ही सेड दैट देयर वाज नथिंग इन द एयर. ही सेड दैट देयर वाज समथिंग इन द एयर. उसने कहा कि हवा में कुछ है, दैट वुड चेंज दैम, जो उन्हें बिल्कुल तब्दील कर देगा. एडवाइज्ड सेकेंड फॉर्म, सेड एंड वुड चेंज, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी. क्वेश्चन नंबर 4 and 5, these two questions are for assignment, but I'll tell you about them shortly. How social were the people of Mars? मार्स के मरीख के लोग कितने सोशल थे, उनका सोशल एनवायरनमेंट क्या था? चैप्टर के लास्ट में जब आपने पढ़ा कि 5 इयर्स के बाद जब रॉकेट आता है उसमें कैप्टन होता है और लेफ्टिनेंट को भेजता है कि पहाड़ियों में जाओ और रिसर्च करके आओ, और जब वो सर्च करके आता है तो वो आके उसको अपनी रिपोर्ट देता है जिसमें वो बताता है दे वर वेरी फ्रेंडली, they learn English fast, they were civilized and they look surprisingly peaceful. आप उस आंसर को यहाँ पे लिखेंगे, the people of Mars were very social and friendly, they were very cooperative and they were friendly and they learned English fast. Question number 5, what difference can you point out in the lifestyle of people of 2 different planets? अब इसमें 2 मुख्तलिफ planets अर्थ और मार्स दोनों के लाइफस्टाइल के बारे में बताना है आपने बेटा कि उनमें क्या डिफरेंस है. यू कैन राइट देयर आर मैनी डिफरेंस इन द लाइफस्टाइल ऑफ the people of two different planets, या there are many difference in the lifestyle of 2 planets, ठीक है, अर्थ एंड मार्स. आप बता सकते हैं कि जो मार्स के लोग हैं वो बहुत फ्रेंडली हैं और पोलाइट हैं, दे लर्न इंग्लिश फास्ट, दे आर वेरी पीसफुल. वेयर एज, जबकि अगर बात की जाए अर्थ पीपल की, they are not friendly and not polite, they are not civilized, they have hatred and enmity, and they involve and indulge in war and battles, कि वो जंगे लड़ते हैं, लेकिन मरीख पर ऐसा कुछ भी नहीं है, they are look surprisingly peaceful. Dear students, अभी तक हमने सिनोनिम को और शॉर्ट आंसर्स को कवर किया. अभी नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रांसलेशन की तरफ. बोर्ड में आपको 15 मार्क्स की ट्रांसलेशन आती है, एक ही पैराग्राफ आता है, आपने उसी को सॉल्व करना होता है, देयर इज़ नो चॉइस इन इट. सो दैट्स वाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ दिए हुए 1, 2 and 3. These are 5 important paragraph in this lesson. The rocket metal cooled in the meadow winds. रॉकेट की धात सब्ज़ार की हवाओं में ठंडी हो गई. Its lid, इसका दरवाज़ा या इसका ढक्कन, gave a bulging pop, इसका दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुला. Its lid gave a bulging pop, इसका दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ से खुला. From its clock interior, इसके घड़ियाल नुमा अंदरूनी हिस्से से stepped बाहर निकले a man, एक आदमी, या woman, एक औरत, and 3 children, और 3 बच्चे. इसके घड़ियाल नुमा अंदरूनी हिस्से से एक आदमी, एक औरत और 3 बच्चे बाहर निकले. The other passengers, दूसरे मुसाफिर, वाइल्ड अवे का मतलब है स्पीडिड, रश्ड, तेज़ी से चले गए, गुम हो गए, चले गए, तेज़ चले गए. अक्रॉस द मरीशियन मीडो, मरी की सब्ज़ार के पार. दूसरे मुसाफिर मरी की सब्ज़ार के पास तेज़ चलते हुए तेज़ी से चले गए.
लिविंग द मैन, आदमी को छोड़कर, अलोन तन्हा, अमंग हिज फैमिली, आदमी को उसके ख़ानदान के साथ अकेला छोड़कर। नाउ आई एम ट्रांसलेटिंग इट कंप्लीट। दूसरे मुसाफिर इस आदमी को अपने ख़ानदान के साथ अकेला छोड़कर तेज़ तेज़ चलते हुए मरीखी सब्ज़ार के पार चले गए। ट्रांसलेशन नंबर 2, द विंड ब्लू, हवा चलती थी, एज इफ गोया के टू फ्लेक अवे देयर आइडेंटिटीज़, हवा ऐसे चलती थी गोया कि उनकी शनाख्त को ख़त्म कर देगी। एट एनी मोमेंट द मारिशियन एयर, किसी भी लम्हे मरीखी हवा, माइट ड्रॉ हिज सोल फ्रॉम हिम, किसी भी लम्हे मरीखी हवा उनके जिस्मों से उनकी रूहों को निकाल देगी। एज मैरो कम्स फ्रॉम अ वाइट बोन, जैसे कि सफ़ेद हड्डी से गोदा निकल आता है। ही फेल्ट सबमर्ज इन अ केमिकल, उसने खुद को केमिकल में डूबा हुआ महसूस किया। दैट कुड डिजोल्व हिज इंटेलेक्ट, जो उनकी जहानत को ख़त्म कर देगा। एंड बर्न अवे हिज पास्ट, और उनके माजी को जला देगा। दीज आर इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन, यू विल प्रिपेयर इट एंड लर्न इट। सम इंपॉर्टेंट पैराग्राफ फॉर ट्रांसलेशन, बेटा ये पहले बोर्ड में आ चुके हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है। आपने असाइनमेंट में इन तीनों पैराग्राफ को राइट डाउन करना है और अपने टीचर को सबमिट करवाना है। याद आपने ये कंप्लीट प्रिपेयर आपने कंप्लीट करना है, लेकिन असाइनमेंट के लिए आपने 1, 2 एंड 3 इन्हें सॉल्व करके आपने अपने इंचार्ज को सेंड करना है। पेरोवर्ड्स जो होते हैं, इन्हें जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो ये सेम साउंड शो करते हैं, लेकिन इनके स्पेलिंग जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और इनके मीनिंग भी जो होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। 21 असेंट, मंजूरी। 21 से 35 तक जो इंपॉर्टेंट पेरोवर्ड्स हैं वो यहाँ पर मेंशन है। असेंट, मंजूरी। ही विल असेंट टू द प्लान, उसने मंसूबे की मंजूरी दे दी। असेंट, चढ़ाई, यहाँ पे असेंट जो एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, असेंट जो है वो एज अ नाउन। द असेंट वाज टू स्टीप, चढ़ाई बहुत अमूदी थी। कंसेंट, मर्जी। साइलेंस इज़ अ हाफ कंसेंट। खामोशी आधी रजामंदी होती है, जैसे आपने ये मुहावरा सुना होगा कि खामोशी को हाँ तस्लीम किया जाता है, तो यहाँ पे साइलेंस इज़ अ हाफ कंसेंट, खामोशी आधी मर्जी होती है। 22 एवोकेशन, मशगला, मीन हॉबी। पेंटिंग इज़ माई एवोकेशन, पेंटिंग मेरा मशगला है। वोकेशन, पेशा, प्रोफेशन। शी इज़ अ लॉयर, शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ टीचर बाय वोकेशन। वेकेशन, तातीलात, छुट्टियाँ। चिल्ड्रन इंजॉय समर वेकेशन एंड नाउ चिल्ड्रन आर इंजॉइंग विंटर वेकेशन। 23 ऑरल, समाज से मुतल्लिक। ऑरल एड्स आर अवेलेबल देयर। ऑरल एड्स ऐसी चीज़ें जो आपकी सुनने में मदद देती हैं, लाइक रेडियो, CD प्लेयर, कैसेट, ETC। ऑरल एड्स आर अवेलेबल देयर। ऑरल, समाज से मुतल्लिक जितनी भी अमदादी चीज़ें हैं वो यहाँ मौजूद हैं। ऑरल, ज़ुबानी। प्लीज़ अवॉइड ऑरल एग्रीमेंट, प्लीज़ बराए मेहरबानी ज़ुबानी कलामी मुआहदे से गुरेज करें, परहेज़ करें। ऑलरेडी मतलब तमाम तैयार हैं। वी आर ऑल रेडी टू लीव, हम सब जाने के लिए तैयार हैं। ऑलरेडी, पहले ही। वी हैव ऑलरेडी सीन इट, हमने इसे पहले ही देखा हुआ है। एक्सीडेंट, 25 एक्सीडेंट, हादसा। आई सॉ एन एक्सीडेंट ऑन द रोड, मैंने सड़क पर एक हादसा देखा। इंसिडेंट, वाक़या। द इंसिडेंट चेंज हिज व्यू, इस वाक़ये ने उसके नुक्ते नज़र को, उसके ओपिनियन को चेंज कर दिया। एड, जमा करना। डू नॉट ऐड टू माई प्रॉब्लम, मेरे मसाइल में मज़ीद इजाफा ना करें। एड, मदद। वी सेंट एड टू द फ्लड विक्टिम्स, हमने सैलाब से मुतासरा लोगों को मदद भेजी। बेल, गांठ। ही बॉट अ बेल ऑफ सिल्क, उसने रेशम के कपड़ों की एक गांठ खरीदी। बेल, जमानत। ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, उसे जमानत पर रिहाई दे दी गई। 28 बैरन, नवाब। मिस डैला मैरिड अ बैरन, मिस डैला की शादी एक नवाब से हुई। बैरन, बंजर। द डेजर्ट इज़ अ बैरन लैंड, ये सहरा एक बंजर ज़मीन है। सहरा एक बंजर ज़मीन होती है या बंजर ज़मीन है। बेयर, नंगा। डू नॉट वॉक बेयर फुटेड, नंगे पाँव मत चलें। बेयर, रीच। वी सॉ बेयर इन द ज़ू, हमने चिड़ियाघर में एक रीछ देखा। बैलेट, रक्स। नॉर्मा इज़ एन एक्सपर्ट बैलेट डांसर, नॉर्मा बैलेट डांसर की एक्सपर्ट, माहिर है। बैलेट, वॉट। ही केम टू पावर थ्रू बैलेट, वो ताकत में वोट के ज़रिए आया। ठीक है, बैलेट मीन वॉट, वो वोट के थ्रू पावर में आया, ताकत में आया, या अथॉरिटी में आया, या प्रेसिडेंट बना, या प्राइम मिनिस्टर बना, ETC। बैलेड, गीत। वी इंजॉयड द ब्यूटीफुल बैलेड, हमने खूबसूरत गीत को इंजॉय किया। Now students, 31, 32, 33, 34 and 35, these words are for your assignment. आप इनके मीनिंग भी राइट डाउन करेंगे और इनके सेंटेंस भी लिखेंगे। तो अभी आपका जो लेसन है, जो आपने असाइनमेंट के लिए आपने करके सॉल्व करके सेंड करना है, क्वेश्चन नंबर 4 and 5।
प्रिपेयर आपने इसे कंप्लीट करना है। प्रिपरेशन में स्टूडेंट आपने लेक्चर नंबर 3 को थोरोली प्रिपेयर करना है, कंप्लीट, ठीक है। बट असाइनमेंट के लिए आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 and 5 you will write their answers and paragraph number 1, 2 and 3 translate it and you will write sentence about 31 to 35 sentences. Okay students, thank you. Allah Hafiz.